Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. The poem that we are going to discuss today is F by Rudyard Kipling. But before we discuss this poem, you are requested to subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon. Let's see who the poet is. The poet is Joseph Rudyard Kipling. He was born in 1865 and died in 1936. He is an English journalist, novelist, poet, and short story writer. He was a Victorian poet. He was born in India, which inspired much of his work. Uh, he was born, in fact, in Bombay. In 1907, he was awarded the Nobel Prize in Literature. He was the first British citizen and the youngest one to receive the Nobel Prize in Literature. His major works include Ganga Din, The Jungle Book, Captain's Courageous, and Kim. This poem was written in 1895, published in 1910 in Rewards and Fairies. It contains 32 lines with rhyming octaves. That means each stanza contains 8 lines. And the rhyme scheme of the poem is A, B, C, B, C, A, B, C, D, C, D. And this poem was a tribute to Leander Starr Jameson, who was a Scottish politician. And this poem is an advice of a father for his son. And this sentence is perhaps the longest example of a complex sentence and the longest example of open condition that we call type 1 condition. Stanza 1 reads, if you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you, if you can trust yourself when all men doubt you, but make allowance for their doubting too, if you can wait and not be tired by waiting, or being lied about, don't deal in lies, or being hated, don't give way to hating, and yet don't look too good nor talk too wise. If you can keep your head when all about you are losing their heads and blaming it on you, जब लोग सारे आपके बारे में बुरा सोचना शुरू कर दें, सारे इल्जाम आप पे धरना शुरू कर दें, उस वक्त अगर आप अपने दिमाग को काबू में रख सके, उसे कूल डाउन कर सके, और अगर आप खुद पे भरोसा करें, अगर उस वक्त जब लोग आप पे डाउट करें, यानी कि जब लोग आप पे जो है शक करना शुरू कर दें कि आप किसी काम को करने के अहल हैं कि नहीं है, तो आपको खुद पर भरोसा रखना चाहिए, लेकिन उनके डाउट को भी जो है कमतर नहीं समझना चाहिए, और उनके डाउट पे भी नजर रखनी चाहिए कि अगर वो आपकी सलाहियत पे डाउट कर रहे हैं तो वेयर इज द लैकिंग, वेयर इज द प्रॉब्लम. ठीक है कि आपको खुद पे भरोसा है, दैट्स अ गुड थिंग, लेकिन लोगों की तनकीद पर आपको खुद को भी जो है टटोलना चाहिए कि कहां पर आप मिस्टेक कर रहे हैं जो लोग आप पे शक कर रहे हैं. अगर आप वेट कर सकते हैं और आप इंतजार से उकताते नहीं हैं, और बीइंग लाइड अबाउट, और अगर आपके बारे में झूठ कहा जा रहा है, डोंट डील इन लाइज, और आप झूठ के जवाब में झूठ से काम नहीं लेते, या अगर आपसे नफरत की जा रही है, आपको बुरा समझा जा रहा है और आप नफरत का जवाब नफरत से नहीं दे रहे, और आप खुद को बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे, और ना ही अपने आप को बहुत अक्लमंद समझ के लोगों से बात करने की अगर आप कोशिश नहीं कर रहे, तो फिर क्या होगा? देखिए, ये कंडीशन है, स्टैंजा 1 में सारी कंडीशन है, और इसका रिजल्ट लास्ट स्टैंजा में मिलेगा हमें. तो ये आपको जो स्टैंजा है वो आपको अधूरा लग रहा होगा, क्योंकि कंडीशन तो है, रिजल्ट नहीं बताया गया इसमें. इसमें पोइट ये कह रहा है कि एक ऐसा वक्त जब लोगों को जो है लोग आपके खिलाफ हो जाएं, आप अपना आप को ठंडा रखें. अगर आप पे लोग डाउट कर रहे हो तो आप अपने पर भरोसा रखें, और साथ साथ आप लोगों के डाउट्स की रीजन को भी समझने की कोशिश करें,
और आप इंतजार अगर करने से आप उकताते नहीं हैं, आप झूठ का जवाब झूठ से नहीं देते, आप नफरत का जवाब नफरत से नहीं देते, और अपने आप को सबसे अच्छा नहीं तस्वर करते, और अगर आप सबके सामने गुफ्तगू करते वक्त बहुत ज्यादा खुद को अक्लमंद तस्वर अगर आप नहीं करते, तो क्या होगा? वी विल फाइंड द रिजल्ट इन द एंड. Stanza 2 reads, if you can dream and not make dreams your master, if you can think and not make thoughts your aim, if you can meet with triumph and disaster and treat those two impostors just the same, if you can bear to hear the truth you have spoken, twisted by knaves to make a trap for fools, or watch the things you gave your life to broken, and stoop and build him with worn out tools. अगर आप ख्वाब देख सकते हैं और ख्वाबों को अपने ऊपर हावी नहीं करते हैं, अगर आप सोच सकते हैं और अपनी सोचों को अपना एम नहीं बनाते हैं, यानी कि आप ख्वाब देखें लेकिन ख्वाबों की दुनिया में ही ना खो जाए, आप सोचें जरूर लेकिन सोच को जो है अपने एम की तरफ लेके जाएं, उसको एक्शन में लेकर आए, थॉट्स को एक्शन में लेकर आए, सिर्फ सोचते ही ना रह जाए. और अगर आपकी जिंदगी में कभी ट्रायम्फ और कभी डिजास्टर मिलता है, कभी आपको कामयाबी मिलती है और कभी आपको नाकामी मिलती है, तो ये दो बहरूपिये आपको जिंदगी में मिलेंगे और आपको इन दोनों ही सूरत हाल में न्यूट्रल रहना है. यानी कि कामयाबी मिलने पर गुरूर नहीं पैदा करना अपने अंदर, और नाकामी पर आपने हलकान नहीं होना, हथियार नहीं डालना है. जब सक्सेस मिले तब भी आप जो है न्यूट्रल रहें, तब भी आप पुरसुकून रहें, जब आपको नाकामी मिले तब भी आप पुरसुकून रहें, और ये दो चीजें अपना रूप बदलकर आपकी जिंदगी में आती रहेंगी, और आपने उन दोनों ही चीजों को अगर सेम डील करना है, अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं कि सुन सकें उस हकीकत को जो आपने बोला है, जिसे कुछ बेईमान लोगों ने तोड़ मरोड़ के पेश किया है ताकि थोड़े कम अकल लोगों को, बेवकूफ लोगों को वो बेवकूफ बना सकें, उन्हें अपने जाल में फंसा सकें. अगर आपकी बात को तोड़ मरोड़ के दूसरों को बताया गया है और आप वो बातें सुनते हैं और बर्दाश्त कर लेते हैं, या आप उस चीज को जिसके लिए आपने अपनी जिंदगी वक्फ की हो उसे तबाह होते हुए देखते हैं और फिर दोबारा झुक कर उसे दोबारा अपने पुराने टूल से बनाना शुरू कर देते हैं, then what will happen? We will discuss it in the end. ये स्टैंजा भी आपको अधूरा लग रहा होगा क्योंकि ये सिर्फ कंडीशन है. रिजल्ट विल बी डिस्कस्ड इन द लास्ट स्टैंजा. तो यहाँ पे पोएट कह रहा है कि जरूर सोचें, ख्वाब जरूर देखें, लेकिन सिर्फ उसके पीछे ही ना चलते रहें, उसको जो है हकीकत में बनाने की, हकीकत में लाने की कोशिश करें. जिंदगी के कामयाबियों से, जिंदगी की नाकामियों से ना घबराएं, ना आप बहुत ज्यादा उस पर फख्र करना शुरू कर दें, गुरूर करना शुरू कर दें, और दोनों को सेम ट्रीट करें, नॉर्मल ट्रीट करें और पुरसुकून रहने की कोशिश करें. और अगर आपकी सच्ची कही बातों को लोग तोड़ मरोड़ के दूसरे बेवकूफ का मकल लोगों को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप ऐसी बातों को बर्दाश्त कर सकते हैं और उन चीजों को, जिन चीजों के लिए आपने जिंदगी का बड़ा हिस्सा वक्फ किया, उन चीजों को तबाह होते हुए देखते हैं और दोबारा उठ के अगर आप उन्हें अपने पुराने ही औजारों से उन्हें सही करने की कोशिश करते हैं, तो क्या होगा आगे जाके पढ़ेंगे. Stanza 3 reads, if you can make one heap of all your winnings and risk it on one turn of pitch and toss, and lose and start again at your beginnings, and never breathe a word about your loss, if you can force your heart and nerve and sinew to serve your turn long after they are gone, and so hold on when there is nothing in you except the will which says to them, hold on. अगर आप अपनी तमाम तर कामयाबियों को एक जगह जमा कर लें, उसका ढेर लगा लें, and risk it on one turn of pitch and toss,
और फिर तमाम तर चीजों को आप जुए पर लगा दें, अपनी तमाम तर कामयाबियों को। पिच एंड टॉस एक ऐसा गेम होता है जिसमें जो है बच्चे अपने कॉइन्स दीवार पे फेंकते हैं, ठीक है, और सारे कॉइन्स फेंकेंगे, दीवार से टकरा के कॉइन्स वापस आएंगे, तो जिसका कॉइन दीवार के सबसे करीब होगा वो सारे कॉइन्स जमा कर लेगा। तो यूं समझें कि एक तरह का सट्टा है ये, ठीक है, जुआ है ये। तो ये यहां पे बता रहे हैं कि अगर आप अपनी तमाम तर कामयाबियों को जमा करके आप उस पे जुआ खेल जाते हैं और हार जाते हैं, और अगर फिर आप दोबारा से अपनी शुरुआत करते हैं और अपने नुकसान के बारे में आप कोई कंप्लेन नहीं करते, अगर आप अपने दिल को, अपने दिमाग को, अपने मसल्स को, अगर आप जो है इस बात के लिए फोर्स कर सकते हैं कि वो दोबारा आपके काम आए जब जो है आपकी जिंदगी की सारी कामयाबियां जा चुकी हों, आपकी जिंदगी के सारे गेन्स लॉस में बदल गए हों, एंड सो होल्ड ऑन व्हेन देयर इज नथिंग इन यू, और ये चीजें आपको रोके रखें जब आपके पास कुछ भी ना हो, एक्सेप्ट द विल विच सेज टू देम, अलावा उस विल के, उस सोच के, उस ख्वाहिश के जो आपके अंदर दोबारा से तमाम तर चीजों को जनरेट करने की है, जो कहती है उन्हें कि रुको और इन्हें थाम लो। तो पोइट ये कह रहा है कि अगर आप सब कुछ हार भी जाएं और फिर आप अपनी शुरुआत दोबारा से करें और आप शिकायत ना करें और अपने आप को दोबारा, अपने जिस्म को, अपनी जान को दोबारा इस बात पर आमादा करें कि वो दोबारा से आपके लिए काम करते रहें, और सिर्फ आपके अंदर ख्वाहिश हो, कुछ भी ना बचे आपके अंदर, लेकिन सिर्फ ख्वाहिश हो, तब भी अगर आप ये बोलें कि रुको मुझे इस काम को करना है, तो फिर क्या होगा? If you can talk with crowds and keep your virtue, or walk with the kings nor lose the common touch, if neither foes nor loving friends can hurt you, if all men count with you but none too much, if you can fill the unforgiving minute with 60 seconds worth of distance run, yours is the earth and everything that's in it, and which is more, you will be a man, my son. पोइटी कहता है कि अगर आप लोगों से बात करते हैं और अपनी जो है वर्च्यू, अपनी क्वालिटीज, अपनी नेकी आप बरकरार रखते हैं, आप उस हुजूम जैसे नहीं हो जाते, आप अपने एट्रीब्यूट्स अपने अंदर कायम रखते हैं, और वॉक विद द किंग्स, और जब आप बादशाहों के साथ उठते बैठते हैं, जब आप बादशाहों के साथ जो है आपकी कंपनी होती है, लेकिन उसके बावजूद आपके अंदर का जो एक आम इंसान है वो नहीं खोता, आप में प्राइड नहीं आता। अगर आपके जो फोज हैं, यानी कि आपके जो दुश्मन हैं और जो आपके मोहब्बत करने वाले दोस्त हैं, अगर वो आपको हर्ट नहीं करते, नहीं कर सकते, और अगर हर इंसान आप पे भरोसा करे लेकिन बहुत ज्यादा भरोसा भी ना करे, अगर आप बेरहम मिनट के 60 सेकंड्स को वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन में कन्वर्ट कर दें, यानी कि आप अपने वक्त का भरपूर इस्तेमाल कर सकें, योर्स इज द अर्थ एंड एवरीथिंग दैट्स इन इट, तो ये दुनिया तुम्हारी है और इस दुनिया में हर चीज तुम्हारी है, एंड विच इज मोर यू विल बी अ मैन, और जो ज्यादा अहम बात है वो ये है कि तुम इंसान बन चुके होगे मेरे बेटे। यानी कि शुरू से लेके पॉइंट एंड तक बता रहा है कि अगर हर बुरे हालात में आप डटे रहें, लोगों के कहने से आपको फर्क ना पड़ता हो, लोगों के झूठ से फर्क ना पड़ता हो, लोगों के नफरत का जवाब नफरत से ना देते हो, अगर आप झूठ का जवाब झूठ से ना देते हो, आप सब कुछ हार के भी दोबारा से शुरू करने का हौसला रखते हो, अगर आप अपनी जिंदगी में सब कुछ हार मान के दोबारा से अपनी जिंदगी को नए सिरे से स्टार्ट कर सकते हो, अगर आप पूरे मुआशरे से बात करते हुए अपने अच्छे एट्रीब्यूट्स को ना खोते हो, अगर आप बड़े लोगों से इंट्रैक्शन में आके
एक आम आदमी वाली जो सोच है वो आप नहीं छोड़ते हैं, आप में फख्र नहीं आता, आप में गुरूर नहीं आता। और अगर आप में ये सलाहियत है कि आप वक्त का भरपूर इस्तेमाल कर सकें और वक्त को जो है आप अच्छी तरह यूटिलाइज कर सकें, तमाम तर एडवर्सरीज के बावजूद अगर आप में दोबारा खड़े हो जाने की सलाहियत है, तो ये पूरी दुनिया तुम्हारी है, सब कुछ तुम्हारा है। और अगर तुम ये सारे काम कर सकते हो तो इसका मतलब तुम इंसान बन चुके हो। यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग माय सन। तो इस पोइट में मोटिवेशन है और इसके अंदर बताया गया है कि जो लाइफ है वो तो है ही लॉस एंड गेन का नाम। तो लॉस और गेन पे आपने परेशान नहीं होना, ना लॉस पे आपने बहुत प्राइड फील करना है, गेन पे ना आपने बहुत ज्यादा प्राइड फील करना है, ना लॉस पर आपने अपने दिल को छोटा करना है। आपने बस चलते रहना है, अपनी सलाहियतों पे भरोसा करते हुए आपने आगे चलते रहना है। और अगर आप तमाम तर जो है बुराइयों को क्रॉस करके आगे बढ़ने का हौसला रखते हैं, तो इस दुनिया की कोई भी चीज आपके लिए नामुमकिन नहीं है। ये पूरी दुनिया आपकी है जिसको आप तस्खीर कर सकते हैं। दैट्स इट। तो ये पूरी पोएम कंडीशनल सेंटेंस में लिखी हुई है और उस कंडीशन की तमाम तर कंडीशंस का फाइनल रिजल्ट ये है कि इस दुनिया की हर चीज आपके अप्रोच में होगी अगर आप तमाम तर हर्डल्स को ओवरकम करके अपना लोहा मनवा लेते हैं। दिस इज इट। एंड मैं यही कहूंगा, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और आपके कमेंट्स जो हैं वो वैल्यूएबल हैं, तो अपने कमेंट्स ज़रूर दिया करें। अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।